غزہ میں گزشتہ 2 سال سے حیوانیت اور درندگی کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی کے خلاف جو ہے یہاں دہلی میں دارالحکومت دہلی میں ایک بڑا مظاہرہ جو پارلیمنٹ کے قریب کا علاقہ ہے جنتر منتر وہاں کیا جا رہا ہے، جس میں کافی پوری جتنی بھی ملی تنظیمیں بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں وہ جمع ہوئی ہے۔ ایک علامتی طور پر یہاں پر جو ہے بچوں کی بوڑھوں کی لاشیں رکھی گئی ہے، فلسطین جو ہے خون میں نہایا ہے، دکھایا گیا ہے، فلسطین کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور یہ بچوں کی جو ہے یہاں پر نعشیں لگی ہے، جس طرح سے تقریباً جو ہے 80,000 کے قریب لوگ جو ہے اسرائیل نے اب تک ہلاک کر دیے ہیں، شہید کر دیے ہیں، جن میں بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور عورتوں کی بھی بڑی تعداد ہے۔ اور اس وقت جو ہے فاقہ کشی کی صورتحال ہے، کیونکہ اسرائیل نے جو ہے پورے علاقے کو، پوری غزہ پٹی کو محصور کر رکھا ہوا ہے، وہاں پر غذائی رسد نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ سب نوجوان آئے ہیں، سب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے غزہ کی صورتحال کو جو ہے ڈپکٹ کرتے ہوئے جو ہے بینر اپنے ہاتھ میں لے کھڑے ہوئے ہیں، پامفلیٹ لے کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے دلی میں 7 اکتوبر 2023 کو جو ہے حماس نے جب حملہ کیا تھا، اس کے بعد سے اسرائیل نے جو جوابی کارروائی کرنا شروع کی، اس کے نتیجے میں جو ہے غزہ کا جو علاقہ ہے محض مشکل سے بمشکل جو ہے 70 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے فاقہ کشی کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس علاقے کو جو جہاں سے رسد آتی ہے، یعنی جو رفح کا علاقہ ہے، اس کو محصور کر رکھا ہوا ہے، اور جو لوگ غذا حاصل کرنے کے لیے، فوڈ پیکٹس حاصل کرنے کے لیے لائن لگاتے ہیں، خطر لگاتے ہیں، اسرائیلی فوجی انہیں گولیاں کو نشانہ لگا کر مار دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ ایک بڑا دردناک منظر ہے، کس طرح سے پیش کیا گیا ہے فلسطین کی۔ یہ تو ایک علامتی ہے، جو اصل میں ہو رہا ہے، حقیقت میں ہو رہا ہے، وہ دیکھ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائے، یہ دیکھ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دہلی میں شدید گرمی ہے اس وقت، بارش صبح میں کچھ ہلکی پھلکی بارش بھی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں یہاں پہنچے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سب طرف، چاروں طرف جو ہے یہ پورا جنتر منتر کا علاقہ جو ہے احتجاج کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں فلسطین کی تئیں بڑی، فلسطینی مظلوموں کے تئیں بڑی جوش جذبہ ہے، ہمدردی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم کا خاتمہ ہو اور اسرائیل کو جو ہے لگام لگائی جائے، اور پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان کو جو ہے، یعنی ہم نے ایک نوجوان سے بات کی تو اس نے کہا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن یہ تو انسان ہے، انسانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آئیے آپ ہمارے کیمرہ مین سے کہیں گے کہ اور بھی ذرا یہ جو مناظر دکھائے، یہاں پہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے، اب ہم اسٹیج کا بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسٹیج پر بھی کافی لوگ، پورے تقریباً مسلم جماعتوں کے نمائندے شریک ہے اس میں، مکمل طور پر جو ہے یہ تمام مسلم جماعتوں کا یہ مظاہرہ ہو رہا ہے، احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ فلسطین کے حق میں جب سے یہ اسرائیل نے جو ہے جارحانہ حرکت شروع کی ہے 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے، یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ تمام مسلم تنظیموں کی طرف سے مل کر مشترکہ طور پر یہ مظاہرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے آپ فلسطین کے بارے میں؟ یہ جو ہے فلسطین میں 600 سے زیادہ دن سے جو قتل عام ہو رہا ہے غزہ میں مسلمانوں کا، یہ خالی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، اور پوری انسانیت کو اب تک جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے تھا پوری دنیا کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم یہاں یہی کہنے آئے ہیں کہ یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، تمام انسانوں کو جو ہے اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور فلسطین کے اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، جو عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، جانوروں کے کہیں پر اگر ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ وہاں تو انسان ہے، کس طرح سے دیکھیے، اتنی 6 ارب کی آبادی ہونے کے باوجود غزہ کی ایک چھوٹی سی آبادی کو، جو کہ 20 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک بڑی تعداد بچوں کی ہے، یعنی کس طرح سے جو ہے وہاں پر نرسنہار کیا گیا ہے۔ 60,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، خود اسرائیلی اخبار کہہ رہے ہیں، اور جو وہاں کے جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے 60,000 یہ تو ایک آنکڑے ہیں جو فلسطینی اتھارٹی اس نے حماس نے جاری کیے ہیں، اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور بڑی تعداد ایسی ہے بچوں کی جو بیچارے
सिर्फ इस वक्त आज के इस दौर के अंदर वो खाना न मिलने की वजह से, पानी न मिलने की वजह से हलाक हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे भी हैं, इसमें औरतें भी हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी हैं कि उनको मेडिसिन नहीं मिल पा रही, इलाज नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अस्पतालों को तहस नहस कर दिया गया, स्कूल कॉलेजों को निशाना बनाया गया, जो शेल्टर होम्स वगैरह थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 90% जो शहरी इलाके हैं, लोगों के मकानात हैं, वो मुनहदम कर दिए गए हैं। लोग टेंटों में और कहते हैं खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हैं। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है तारीख का। मैं समझता हूँ कि मैंने तो अपनी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने जो है इतना बड़ा जुल्म अपनी आंखों के सामने होते नहीं देखा है। मैं अपील करता हूँ इस प्रोटेस्ट के जरिए से कि फलस्तीन के साथ में इंसाफ होना चाहिए, उनको फ्री होना चाहिए, उनको एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से जो है जीने का हक मिलना चाहिए और वो भी जो है सुकून के साथ में सो सकें, खा सकें, पी सकें और जो है एक फलस्तीनी की हैसियत से पूरी दुनिया के अंदर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। वेस्ट बैंक और मशरक़ी यरूशलेम के दरमियान 35,000 से ज़ायद आबादी को बसाने का, उस पर भी आपने कहा कई बड़ी जो ममालिक है जो उसके बैकर्स रहे हैं, फ्रांस है, ये है, उन लोगों ने भी मजम्मत की है, तो वो भी आपने मुतालबा किया? नहीं, यानी दुनिया भर की जो अवाम है, यानी फ्रांस में हो या स्पेन में हो या मॉस्को में हो या वाशिंगटन में हो, खुद तेल अवीव में, वो अवाम आज फ़लस्तीन के हक़ में और गज़ा की अवाम के हक़ में है। लेकिन जो हुक्मरान हैं उनकी क्या मजबूरियाँ हैं, वो इसराइल की हुकूमत जुल्म के साथ है। तो मतलबा यही है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, चाहे वो फ़लस्तीनी अरब हो, वो फ़लस्तीनी मुसलमान हो, फ़लस्तीनी यहूदी हो, फ़लस्तीनी ईसाई हो, तो उनको उनका मुल्क वापस किया जाए और गज़ा में जो अब खुराक की, ग़िज़ा की, दवा की और जो जुल्म सितम का सिलसिला है वो बंद किया जाए। उस सिलसिले में भारत की अवाम भारत की हुकूमत से मुतालबा करती है। तो ये जो मुसलमान का मसला बन गया है, ये गज़ा वाला, इसको किस तरह से? देखिए, एक तो गलती कुछ हमारी भी है कि हमने इसको मजहबी सेंटिमेंट से जोड़ा है। मजहब के एतबार से तो फ़लस्तीन किसी एक मजहब का नहीं बल्कि जितनी अहले किताब है उनका है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये कॉलोनियल एग्रेशन है और एक बुनियादी शहरियों को शहर से निकालना, इस हद तक जुल्म करना कि जो बिल्कुल बर्बरियत के अलावा उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमको इसको उसी एंगल से ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जो जायज़ मुल्क जिनका है, नाजायज़ लोग उनको मुल्क से बाहर कर रहे हैं। और भारत पर एक लंबा वक्त गुलामी का गुजरा है। गुलामी और जुल्म क्या होता है हमारे पुराने लोग जानते हैं। तो हमको उस आज़ादी की लड़ाई के तौर पर ही इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए और उस आज़ादी को प्रोटेक्ट करने की भारत की शनाख्त को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हम अगर इसको आज़ादी, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती, दस्तूर की बाज़दारी, इन चीज़ों को अगर पेश नज़र रखें तो ये सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है, ये इंसानी इशू है, बैनुल-अक़वामी इशू है और इसको हमको उसी एंगल से देखना चाहिए, शरीक होना चाहिए, शरीक करना चाहिए। बड़ी तादाद में नौजवान शरीक हुए हैं, आइए बात करते हैं। आप क्यों आए यहाँ पर? जी, हम फ़लस्तीन के लिए आए। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? वहाँ उनके सपोर्ट के लिए आए। वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है बच्चों पर, उनको भूखा खाना नहीं दिया जा रहा है, ना ही उन्हें पानी दिया जा रहा है, उन पर बमबारी हो रही है। वो हम आए फ़लस्तीन की हिमायत में, जो इजराइल जुल्म कर रहा है उसके ऊपर, ये उसका बहुत ज़्यादा खतरनाक मामला है। उसकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है और हम फ़लस्तीन के बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल न घबराएं, इंशाअल्लाह बिल्कुल उसके साथ है। आप क्या कहेंगे मोहतरम, फ़लस्तीन के हवाले से जो हो रहा है? फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म हो रहा है और तमाम दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए और मुस्बत उसकी हिमायत करनी चाहिए। खाली आवाज़ से बात नहीं बनती है, मदद करनी चाहिए और अमली मदद करनी चाहिए। हम आप तो एक धरना दे सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जो आलम इस्लाम की हुकूमतें हैं, तमाम दुनिया की हुकूमतें हैं, उनको फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए, खुल के मदद करनी चाहिए और मजलूमों की मदद करना ये सारे समाज में एक ज़रूरी बात है। मजलूम हैं फ़लस्तीनी, इसराइल जालिम है, जालिम को दबाना चाहिए और मजलूम की हिमायत करनी चाहिए। गज़ा में जो कुछ भी हो रहा है उसे इस सदी का सबसे बड़ा जुल्म करार दिया जा रहा है। तारीख ने जो है, इस सदी की तारीख ने अब तक इस तरह का जुल्म के वाक़यात नहीं देखे हैं। रोज़ाना एक नई दास्तान वहाँ पर रकम की जा रही है। हज़ारों बच्चे जो है भूख से बिलख रहे हैं, वहाँ पर ग़िज़ाई रसद नहीं पहुँच रही है। उसी हवाले से यहाँ पर जो जलसा मुनक़द किया गया था, एहतजाजी जलसा मुनक़द किया गया था, उसमें जो है जो 4 बुनियादी मुतालबात किए गए कि सबसे पहले ग़िज़ा वहाँ पे पहुँचाना
खुराक वहाँ पहुँचाना जो है शुरू की जाए और सीज फायर फौरन कर दी जाए। और तीसरी बात ये कही गई कि ये जो मामला है वहाँ पर जो है इसराइल ने जो है जो उसका एक नक्शा है कि एक ग्रेटर इसराइल बनाने का जो नक्शा है, तो मशरक़ी यरूशलेम से लेकर मगरबी किनारा यानी वेस्ट बैंक के दरमियान उसने 35,000 लोगों को बसाने का जो फैसला किया है, उसकी फ्रांस, बरतानिया और दीगर जो इसराइल के हिमायती मुल्क है उन्होंने भी मजम्मत की है। तो उस सिलसिले में भी इस जलसे में मुतालबा किया गया कि हुकूमत को भी, हमारी हुकूमत को भी, इंडिया की हुकूमत को भी इसकी मजम्मत करना चाहिए। इसराइल को इससे बाज रहने की जो है बाज रखने की कोशिश करना चाहिए। उसी तरह ये भी मुतालबा किया गया कि जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन जो है एक आज़ाद रियासत कायम की जाए, जो इसका एक पुराना मुतालबा है। दुनिया का जो है ये जो नौआबादी निज़ाम जो रहा है, इज्तिमाई जो निज़ाम रहा है, कॉलोनियल जो स्टेट रहा है, तो उसका एक आखिरी जो है ये पॉइंट है, स्पॉट है, फ़लस्तीन है, जो अब तक आज़ाद नहीं हुआ है। ये जो है साम्राज्य क़ुव्वतों के नतीजे में वहाँ पर इसराइल का वजूद और क़याम अमल में आया था। आज भी जो है एक रिश्ता व मसला है और दुनिया में जो बेहिसी पाई जा रही है यानी हुकूमतों में, दुनिया की हुकूमतों में फ़लस्तीन के तई, वो भी इस सदी का एक अलनाक वाक़या है। इस पर भी जहाँ पर जो है मुक़र्रिरीन जो थे, मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले थे, मुस्लिम तंजीमों से तमाम मुस्लिम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जिसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, मिली काउंसिल और जितनी भी जो है छोटी मोटी जो तंजीमें हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, और जो मशहूर कारकुनान हैं, समाजी जो है एक्टिविस्ट हैं, जैसे अपूर्वानंद साहब, सरदार दया सिंह साहब और भी कई जो है लीडरों ने यहाँ पर खिताब किया और हुकूमत हिंद के रवैये की जो है मजम्मत भी की और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो इसराइल की हिमायत, अंधाधुन हिमायत का सिलसिला बंद करे और फ़लस्तीन के जायज़ हुकूक़ के लिए बात करे। और देखना है कि ये जो यहाँ पर जो मुजाहरा किया गया है उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों ने जोश व खरोश दिखाया, कितनी ख़वातीन थी, बड़ी तादाद में ख़वातीन थी, अब भी ख़वातीन जा रही हैं। तो ये जो मामला है, ये फ़लस्तीन के तई जो हमदर्दी का इज़हार किया गया है, ये वाक़ई खुश आइन कदम है।